पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जिला परिषद चुनाव आ रहे हैं, पेंशन के चुनाव आ रहे हैं, पर अजे आ नहीं रहे, नजर नहीं आ रहे, दूर दूर तक किते नजर नहीं आ रहे। नहीं नजर दी जिला परिषद जड़ा जित गया, कोई रब सबबी जिला परिषद दोबारा जितदा नहीं। सुशील काली जिते नहीं, वो नीचे के क्या करेगी सरकार? सरकार कहते हैं हम गरीबों के मसीहा, किसानों के मसीहा। नहीं बचेगा किसान, नहीं बचेगा। देख रहे हैं स्कूलों के फंक्शन हो रहे हैं, स्कूलों के फंक्शनों में राजनीति हो रही है। बच्चों को वहां बोल रहे हैं वो एमएलए चोर है, वो एमएलए बेईमान है। देखो आप शिक्षा के केंद्र में, जो बहुत बड़ी गलत बात है। मैं इसको 80 करोड़ आबादी को सस्ता राशन है, लोग कमाना नहीं चाहते, राशन ले रहे हैं और उधर बेच रहे हैं। उनको भी याद करो ने, भगत सिंह, राजगुरु वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, गुरु गोबिंद सिंह के बेटे, जिन्होंने सारे परिवार ने देश के लिए शहीदी दी। और शहीदी दिन चले हुए हैं आजकल। हाँ फिर सुनो, अब तो सवेर कुर्ता पजामा पहनते हैं, सुबह तिलक लगा लेते हैं, बाजी हम आपकी सेवा करेंगे। ओ दीपक जी की बात है, की बात है, आ जाओ महाराज महाराज नंबरदार साहब, क्या बात, क्या बात। आ जाओ, आज रंग दसीए तुहानू की बात, क्या बड़े बात। दिन हो गए ਤੁਸੀਂ याद करदे ਨੂੰ। ओ महाराज दिन ਤਾਂ ਕਰੀਦਾ, और ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਂਭੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਆ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਮਾ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਛੱਡ ਗਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਬਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਨਾਰਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਂਚਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦਿਸ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੋੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਟਸਮਟਸ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ? ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਜੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਟ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸੀਟ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਟ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਝੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਵਰ? ਮੈਂ ਦਸੂਹੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦਸੂਹੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦਸੂਹੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਇਦਾਂ ਪਈ, 15 ਸੀਟਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤਲਵਾੜਾ ਬਲਾਕ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਦਸੂਹੇ 'ਚ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਡੋਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ 21 ਸਾਲ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜੀ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਮੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਜੀ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਧਾਕੜ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਐਮਐਲਏ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੋਟਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਪੈਂਚਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੋਟਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਮਤੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਈ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਸਬਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਲੀ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੇਵਿਦਾ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆ ਚਤਨਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਯਾਦ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਥੀ ਨੇ, ਲਹਿਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ,
ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਵੋਗੇ, ਝੂਠ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਆਪਦਾ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ PWD ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ नहीं मिल रहे। इस डर दो हमारे, देखो गल का डर बुरी चीज है और आने वाली उम्मीद ये कह रही है, देखो अगर बंगाल साफ हो गया जी। तो पंजाब में भी लहर अब बड़ी जोरों से आएगी, चाहे तो बीजेपी अकाली गठबंधन हो जी। लग रहा है, अगर बीजेपी लग लड़े, अकाली लग लड़े, कांग्रेस लग लड़े, आप लग लड़े, लेकिन वहां एक बात की बात आई है कि जो बिजली के बिल माफ है लोगों के, वो तो इधर भी है, हिमाचल च भी है। नहीं वहां पंजाब और हिमाचल में बड़ा फर्क है। पर सुखू हजे 300 तक पहुंचे नहीं ना? नहीं पहुंचे, 300 बोलिया था नहीं। देखो उन्होंने जो वादे किए 1500 रुपए का भी किया, 125 था ये जयराम सरकार का ही चले ना अजे तक? नहीं 125 था नहीं हुण भी है। नहीं है तो सही, लेकिन बात यह है ना जी, आप जो वादे करते हैं जो तो बात आप लिख लो, कोई भी MLA, कोई भी मंत्री, कोई भी। बीजेपी तो अपने वादे निभाती है। देखो बीजेपी सुनो नहीं, देखो प्रधानमंत्री जी किसानों ਨੂੰ 2000 रुपया दे रहे हैं, लगातार दे ही रहे, किसी का बंद तो नहीं आ ही रहा ना। नहीं मेरे कहने का मतलब देखो हमें पर 1500 नहीं आया नहीं आया, जो वादे किए थे नहीं आए। बाकी रह गई बात, इन्होंने कहा था देखो हमारा पशुओं की तरफ कोई ध्यान नहीं, जंगली जानवर की तरफ कोई ध्यान नहीं, 1800 रुपया NPK बराबती 16 बोरी हो रही है, 85 रुपए 90 रुपए डीजल है, बताओ किसान कहाँ जाए? किसानों का बुरा हाल, किसान को तो पीड़ के रख दिया। अच्छा 2200 रुपया कणक बिकेगी। अच्छा जी, अबेपुर जो गांव है ये आपके बुजुर्गों के नाम से है? हाँ अबेपुर ऐसा बात है जी कि वैसे तो हमारे जद्दी घर है खाट पंजोर। अच्छा जी। खाट पंजोर के जालदार 8 गांवों में जायदाद थी जी। तो जे मेरे पिताजी के नाम पे गाँव है जी जी, जहाँ एक राजा भी हुए हैं राजपूत जी, बहुत बड़े राजा हुए हैं। तो जे गांव शौड़े से काटा हुआ है, शौड़े का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ जी। भद्रकाली के इलाके में जहाँ पशु राजा के नौकर के चले गए जी, उसने कहा इतना बड़ा राजा है तू तो पशु तो हमारे चरा रहा है। जी जी। राजे को उन्हें रोटी नहीं खाई, उस वक्त बड़ी शर्म होती थी जी। तो राजे को जाके बताया क्या बात, बोला फिर ऐसा करो कि आप जिंदगी गाय को काटो और उसका मांस सिर पे रख लो, जहां जहां पड़ता जाएगा वो सब तेरा ही होगा। जो एक शौड़े का गांव काटा हुआ 10,938 किनार का गांव है। अच्छा जी। मेरे मेरे पिताजी के नाम पे गांव है जहाँ कोई शामलाट नहीं है, कोई कुछ नहीं। 8600 कनाल जमीन हमने 8 गांवों में, खाट पंजौर, डूड़ी, डाडा, गुगलैड़, दौलतपुर, भद्रकाली, अबेपुर और डूड़ बगोड़ा पंजाब में भी है जी। तो जहाँ से 8600 कनाल सरकार को दी है। लेकिन ये जो इंदिरा ने कानून बनाया था डॉक्टर YS परमार ने, जहां भी धांधली हुई, मैं कहना चाहता हूँ जी जी। किसान होने के नाते धांधली इसलिए हुई है कि 2 कानून बना दिए। जहां रखा इन्होंने 317 कनाल, वहां रखा है 700 कनाल, वहां तो सेबों के बाग है। जी जी। देखो दो एक हिमाचल में 2 कानून नहीं बन सकते। मैंने तो फिर भी कांग्रेस की मदद की है, लेकिन अब तो मैं छोड़ गया हूँ, मैं तो राजनीति से प्रत्याग चला गया हूँ, पंजाब केसरी में चला गया हूँ, पहले भी पंजाब केसरी का अब खेती बाड़ी और जिम्मेदारी की तरफ मैं अब खेती बाड़ी और जिम्मेदारी, बाकी जो भ्रष्टाचार के प्रति आप जो आपके सामने ये टैंक बना हुआ है जी जी, जे 155 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक का जे आई है स्कीम आई, जब चैतन्य MLA थे तब आई। तो जे अब जहां बगावत हो गई हिमाचल में 6 MLA की, तो उसके बाद दूसरा MLA आया जहां से लेके पाइपलाइन सारी ठेकेदार का टेंडर हुआ, ठेकेदार द्वारा जे पाइपलाइन बछाई गई, उसके बिल अदा हुए, दूसरा MLA आया उसने उखाड़ के सारी ऐसे फेंकी जैसे गोबर नहीं फेंकते, कोई लोग उठा के ले गए। कोई 155 करोड़ भद्रकाली, अबेपुर, फतेहपुर के लिए आया, लेकिन
कोई पूछने वाला नहीं। मैंने उनराज जी आए थे तो मैंने उनसे भी क्वेश्चन किया था कि जो किसानों को पीने के लिए पानी, अभी अभी जेसीबी आई है, ये पाइपलाइन उखाड़ी हुई थी, वहां घंटा मारी चले गए, बिल पाइपलाइन सारी ऊपर, बिल नीचे के। क्या करेगी सरकार? सरकार कहते हैं हम गरीबों के मसीहा, किसानों के मसीहा। नहीं बचेगा किसान, नहीं बचेगा गरीब। तो कैसे आप, इतनी जमीन है आपकी, उसको सभी में खेती कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो यही प्लाट है दोनों भाइयों का। जी जी। तो आधा उनके पास है, आधा मेरे पास है। पानी खड्ड से, ये दरेड़ा वाटर सप्लाई स्कीम जी भी हमारे बुजुर्गों ने दी है। जय प्रताप सिंह कह रहा हूँ, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। जी जी। प्राइमरी स्कूल जो अब मिडिल है अबेपुर वाला, वो भी हमारी जमीन में। अबेपुर में रास्ते भी दिए हैं, बड़ा कुछ दिया, लेकिन आज दिन तक सन 47 से लेके, मैं इसी बात पर आना चाहता था। देखो 47 से लेकर जी आज दिन तक मेरे घर में सिर्फ 45 बोरियां सीमेंट की लगी। आपका रास्ता आज तक भी कच्चा है क्यों? नहीं सुनो ना, अब कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का एमएलए आ गया, कांग्रेस की सरकार आ गई और ये टेंडर दे दिया जी, ये हमारे भद्रकाली प्रधान को। जी जी। 12-12 लाख के दोनों टेंडर थे। टेंडर हुए 2 साल हो गए, 2 साल। अब मैं पूछा, वैसे मंत्री जी ने, पीडब्ल्यूडी जी ने, मंत्री जी ने कहा था कि जिसका 18 महीने टेंडर में काम नहीं करता उसका टेंडर कैंसिल कर दो। जी। एक्शन साहब को बुलाया, जहां बजरी और मिट्टी डाल दी, 6 इंच बजरी डालनी थी, 6 इंच मिट्टी, बड़े बड़े बोल्डर डाल दिए। मैंने काम को रोक दिया। जी जी। क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। जी। पत्रकार के सामने ऐसा भ्रष्टाचार हो तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आप देख रहे हैं स्कूलों के फंक्शन हो रहे हैं, स्कूलों के फंक्शनों में राजनीति हो रही है। बच्चों को वहां बोल रहे हैं वो एमएलए चोर है, वो एमएलए बेईमान है। देखो, आप शिक्षा के केंद्र में, ये बहुत बड़ी गलत बात है, मैं इसको दावे से कहूंगा। जी जी। जहां से बच्चे निकल के देश के नेता बनेंगे, बड़े बड़े जज बनेंगे, बड़े बड़े आईपीएस अफसर बनेंगे, बड़े बड़े महकमों में जाएंगे, आप वहां जाके बात करो शिक्षा के बारे में, सनातन के बारे में बात करो, खेल कूद के बारे में बात करो। आप वहां जाकर ये कह रहे हो वो चोर है जी, वो बेईमान है। अरे बच्चों के मन में ये बातें बैठा रहे हो। ये मैंने देखा, सुना है, मैं जहां जहां फंक्शन सुन रहा हूं वहां ये बातें हो रही हैं, ये सारी गलत बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा, विद्या के मंदिर है। देखो विद्या का मंदिर है, आप विद्या के मंदिर में भी जाके राजनीति कर रहे हो। जहां एक कमेटी बनी हुई थी भद्रकाली जी, जिन्होंने वहां मूर्ति बनाई है, वो कमेटी का प्रधान ही बदल दिया। वहां ओपोजिशन के एमएलए आ गए, चैतन्य जी। अरे चैतन्य का काम है, ना बुलाए तो भी वो आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां कमेटी सारी बदल दी, जो कमेटी थी। क्या हो रहा, ग्राउंड में पैसा लगाए, 12 लाख एक लगा, 3.5 लाख एक लगा, उसके बाद पैसा दिया, पीडब्ल्यूडी ने काम किया। ग्राउंड की हालत देख लो। ये स्कूल हम लोगों ने, सारे गांव वासियों ने, जब कुलदीप जी मंत्री थे तो जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल उनकी देन, जहाँ डॉक्टर थे हमारे लखनपाल, उनकी देन है राजा वीरभद्र से कि ये स्कूल लेके दिया, बिल्डिंग बना के लोगों ने दी। क्या मजाक कर रहे हैं? ये इस तरह राजनीति होती? आप शिक्षा के केंद्र में गलत बातें कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, और बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से। लेकिन मैं आपको जो संदेश भी देना चाहता हूं, आप चैनल के पत्रकार हैं और हलचल चैनल सारा वर्ल्ड देखता है, इसके साथ और भी बहुत से चैनल हैं, मैं भी पत्रकार हूं। जी जी। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि जो तथ्य हैं, चाहे वो सरकार के हों, चाहे वो जनता के हों। और एक बात संदेश देना चाहता हूं, ये सीट कभी नहीं हटती थी। 26,500 की वोट ली गई पिछले चुनाव में, लेकिन अगर संगठन और जो नेतागण टिकट के दावे, टिकट तो एक को मिलेगी, ये बस की तो टिकट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट है। ये मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, बड़े बड़े नेता इसका फैसला करेंगे। तो अगर एक को टिकट मिल गई, अगर आप पार्टी से प्यार करते, पार्टी आदमी को कोई नहीं जानता, पार्टी सर्वोपरि, बिल्कुल बिल्कुल, देश सर्वोपरि। तो मैं मोदी जी का भी आभारी हूँ, एक सर्विसमैन भी हूँ, उसके नाते जो उन्होंने डिफेंस को, फौज को बहुत दूर ले गए हैं और देश को भी बहुत दूर ले। तो मैं मोदी जी का भी धन्यवादी हूँ, रक्षा मंत्री जी का भी, अमित शाह का भी, एक सर्विसमैन हो कि
कानून व्यवस्था, आप ये चिट्टे की तरफ तुर पड़े, चलो होना भी चाहिए। अरे चिट्टे के साथ साथ लोगों की जो समस्या उनके तरफ भी ध्यान दो। बिल्कुल ठीक है। बात ये ठेकेदार नजारे ले रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं और इन ठेकेदारों की भी जांच होनी चाहिए। क्या इन्होंने जो मटेरियल लगाया है वो सही लगाया है? क्या इन्होंने पंचायत के कार्य किए हैं? सुनने में आया 22 लाख रुपए की ग्रांटें आई हैं, लेकिन मौके पे कुछ नहीं। लेकिन आने वाले चुनाव से पहले शायद ऐसे स्कैंडल उजागर हों। ठीक है, आप 5 साल प्रधान बनते हैं, आप फिर नेताजी उनके हाथ रख देते हैं, ऐसे बातें थोड़ी चलती। प्रधान तो काम के लोग बनाते, उसको किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, उसको निष्पक्ष काम करना चाहिए। जब ऐसी बातें होती हैं गांव में तो लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? प्रधान के खिलाफ क्यों नहीं बोलते लोग? मैं बताता हूँ, हर आदमी प्रधान बन जाता है? नहीं बनता। हर आदमी मेंबर पार्लियामेंट बनता है? नहीं बनता। हर आदमी मंत्री बनता है? नहीं बन। गरीब जनता क्या करे? रोटी कमाए या इन लोगों का पीछा करे? सुनने वाली बात है। इसीलिए इनको मौका मिलता है ना? नहीं, इसीलिए मौका मिलता है। फिर वो मेजोरिटी बना लेते हैं। अगर 9 बेंच है तो उन्होंने 5 अपने गुट में ले रहे हैं, उनको कोई पता नहीं। रेजुलेशन पे साइन हो रहे हैं, क्या उसने डाला, क्या किया, क्या कुछ। बस वो कि मैं नेता हूं, मैं नेता का आदमी हूं, आप जहां साइन करो। बहुत से बेंचों को ये भी नहीं पता कि कितनी ग्रांट आई। चलो ये भी बड़ा उन्होंने बढ़िया कर दिया कि 125 दिन कर दिया मनरेगा के। उसमें एक शर्त और भी रख दी कि जब फसलों का टाइम आएगा तो मनरेगा में काम नहीं होगा, क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहा। एक 80 करोड़ आबादी को सस्ता राशन है, लोग कमाना नहीं चाहते, राशन ले रहे हैं और उधर बेच रहे हैं। कोई जरूरत ही? ये भी मुद्दा है। हाँ, ये भी मुद्दा है। जो राशन आता है वो पंजाब में जा रहा, वो पंजाब में जा रहा, कई जगह जा रहा, वहीं बिक रहा। सुन लो ने, 15 किलो चावल मिल रहे हैं, 20 किलो आटा मिल रहा। 15 किलो चावल कौन सा परिवार है जो खा जाएगा 1 महीने में? बड़े से बड़ा परिवार भी 15 किलो चावल को 3 महीने लग जाएंगे, 2.5 महीने खाने में। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इसीलिए किसानी की तरफ से हट रहे हैं लोग। किसान जब मजदूर ही नहीं मिल रहा, मैं तो जहां बूटा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे सफेदा लगा दे। जी। अब मैं लगा हुआ हूँ, लेबर लगी हुई थी, वो भी चली गई। सुनो, आदमी मिलते नहीं। दिहाड़ी दो 500 रुपया, शाम को शराब की बोतल दो, बीड़ियां दो और उसकी खुशामद करो, फिर भी नहीं बात बन रही। हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को ये जो सस्ते राशन वाली बात है, इस पे अंकुश लगना चाहिए, ताकि जो लोगों की किसानी की जमीनें लोगों की खाली पड़ी हुई, पहले जैसे लोग किसानी करते थे, लोग किसान की तरफ ध्यान दे, अपनी जिम्मेदारी की तरफ ध्यान दे, तब ये देश तरक्की। पशु भी रखने छोड़ दिए ना लोगों ने। पशु देखो तो सही, दूध पी रहे हैं, इसके ऊपर भी कोई कानून नहीं बनाया, कोई नहीं। अब जहां बेसहारा पशु गायें मर रही हैं, लोग उनको काट रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं, गाड़ियों में डाल के यूपी में ले जा रहे हैं बूचड़ खाने में, लेकिन आंखें मुदी नहीं। पंचायत प्रधानों के इलाके में ये कार्य हुआ है, तो फिर अगर आप उनको भी याद करो ने, भगत सिंह, राजगुरु, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, गुरु गोबिंद सिंह के बेटे, जिन्होंने सारे परिवार ने इस देश के लिए शहीदी दी। और शहीदी दिन चले हुए हैं आजकल। हाँ, फिर सुनो, अब तो सवेरे कुर्ता पजामा पहनते हैं, सुबह तिलक लगा लेते हैं, बाबा जी हम आपकी सेवा करेंगे। अरे सेवा के लिए सेवादार बनने की पहले हिम्मत तो रखो। आपका घर का वातावरण ठीक है, आप घर से अच्छे खाते पीते हो, क्या भ्रष्टाचार तो नहीं करोगे, क्या लोगों को तो नहीं लूटोगे, तो फिर कैसे देश तरक्की करे। मुद्दे बहुत से हैं, बातें बहुत सी हैं, लेकिन फिर कभी चर्चा करेंगे। चलो, बहुत धन्यवाद मैं आपका कि आप खेतों में आए हैं। जरा खेतों की भी सारी ये राजस्थानी सरों बीजी हुई है। जी जी। और ये सारा दूसरी बार पानी लगा रहा हूँ, तो देखो आप भगवान के ऊपर है। कहीं ओले पड़ गए तो खत्म हो गया जमींदार, अभी बारिश नहीं पड़ रही, तो मैं दिखाता हूँ थोड़े से आपके खेतों। और पानी की भी बड़ी समस्या है, दृश्य दिखाता हूँ आपके। पानी की भी जो समस्या है लोगों के लिए, उनका भी हल किया जाए। धन्यवाद। तो ये देखिए, ये खेत हैं पोलू लंबरदार जी के,
ये अबेपुर गांव इन्हीं के बुजुर्गों का गांव है, इन्हीं के बुजुर्गों के नाम पर इस गांव का नाम अबेपुर पड़ा है। और ये जो खेत हैं इनको फिर से हरा भरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं पोलू जी। तो ये बैठे हुए हैं अपने, और बात है ना जी, आज इनसे हमने जहाँ पर चर्चा की है, चलते चलते इनसे मुलाकात की है, तो फिर किसी दिन किसी नए साथी के साथ बैठेंगे, उसके साथ मुलाकात करेंगे। तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि देश के जितने प्रतिनिधि, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे जिला परिषद है, चाहे पंचायत मेंबर हैं, चाहे प्रधान है, अगर ईमानदारी से कार्य करें, सरकार के पैसे का आए हुए सदुपयोग करें, तो जो देश सोने की चिड़िया बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं। पत्रकार, धन्यवाद।